Hello. Now, starting with a new topic. See about your test on 12. Why please? Listen. About your test, 12th को जो test है, you have admission, retirement, death, and objectives, true or false. Okay. So pattern and all I'll be sharing in the group. Module. Everything is going to be from module. आज ही pattern भेज दूँगा. और write and practice module अगर लिख के किया है तो definitely will be able to score at least 90% marks. Okay, if not full. But सब भेज रहा हूँ pattern everything I'm sending. बाहर का आया तो भी 5-10% रहेगा. 90% it is going to be from module only. Okay. तो इतना दिमाग चला लेने का. पेपर में भी एक्चुअल पेपर में 5-10% is from outside only. तो उतना दिमाग चलाना पड़ेगा. But yes, 90% will be from module. आपको मालूम है आपने इतना सारा टेस्ट लिखा है, सब मॉड्यूल से ही है. 90% मॉड्यूल से ही आने वाले. ठीक है. Okay, let's start with the next topic, that is dissolution. Okay. Now, dissolution has two parts. Okay. 12th वाला जो dissolution था वो तो है ही. उसके अलावा you have piecemeal distribution also. What do you have? Piecemeal distribution. Dissolution तो है, साथ में piecemeal distribution है. That is the new part that you did not have in 12th standard. Okay. तो पहला पार्ट तो सेम ही है, डिसोल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट डिसोल्यूशन along with the problem only. Take page 247. फर्स्ट प्रॉब्लम से ही शुरू करते हैं सीधा. डिसोल्यूशन द 12th स्टैंडर्ड पार्ट इज सेम. जो अलग पार्ट है that I'll explain along with the chapter. हाँ. अरे थियरी सब किया हुआ है. जो अभी तो टेस्ट देके बैठा है डिसोल्यूशन. पिecemeal डिस्ट्रीब्यूशन बाद में, पहले डिसोल्यूशन. See page 252. सेम स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज सेम. ध्यान देना अभी. चलो ध्यान देना अभी. Look at sum number 1, page 252. एक दो पॉइंट्स है ना आपके 12th के कंपैरिजन में अलग है डिसोल्यूशन में. वो क्या है मैं आपको सबके साथ बताता हूँ. ध्यान से देखना. सॉरी. X, Y and Z are partners in a firm, XYZ and company, sharing profits and losses in the ratio of 4:2. मिला? Partners decided to dissolve the firm on the said date. Fixed assets realized 520, booked at 440, stocks are valued at 250 and taken over by partner Y. कितने ये सभी पढ़ रहा हूँ. Creditors are allowed discount of 5% and expenses are 6,000. Prepare realization account, partners capital and cash account. So very straightforward basic sum. And all steps also of normal dissolution remain the same. Okay, page 252. Tell me what are the steps of dissolution. Remember, first step, empty the balance sheet. Then what? Sell out and take over the assets. Pay off or take over the liabilities. Pay off partners loan, find out profit loss and settle capital, right? Same steps you are going to do. Everything is same. एक दो चीज अलग है खाली, बीच में बताऊंगा क्या है, तो घाई मत करना, साथ में करते जाओ. अकाउंट भी सब सेम ही है यहाँ पे. आपका रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल. बैलेंस भी कैसे बनेगा? बिजनेस बंद हो रहा है. बिजनेस बंद हो रहा है तो यू हैव बैंक अकाउंट. पैसा लो, पैसा दो और खत्म करो. बैंक का
हाँ कोई कैलकुलेटर नहीं होता। कैलकुलेटर एक मिनट एक तो था लेकिन से ओके सर मिल गया बार बार चलो now listen. देखो ध्यान से first sum, same format, same accounts. Okay, if you have partners loan, you make it separately. Tell me, first step is what? Empty the balance sheet, right? So, balance लिख दो capitals में by balance BD. XYZ is 4 lakhs, 3 lakhs, and 2 lakhs. Okay? You have reserve also. क्या करना है general reserve? Distribute 4:3:3. So I think it is 36,000, 27,000 and 20. 432 है sorry 432 है तो 36, 27 and नहीं 40, 30, 20 40, 30 and 20 आएगा 4:3:2 है. Okay, cash balance is 10,000, please be quiet. Okay, go to realization, transfer the remaining assets to sundry assets. इसमें आपको जर्नल नहीं है डिसॉल्यूशन में, सिर्फ लेजर्स ही है. 12th में you had journal also and ledger also. Your direct entries you have in the ledger only. Stock was 3 lakhs. Debtors were 5 lakhs. What? Villa 13 lakhs. Then you go to sundry liabilities. So buy sundry liabilities. इसमें आपके पास है I think एक ही liability है, that is creditors, that is 3,20,000. बराबर है 3,20,000 are creditors. Okay. संभालना blackboard. Now what next? After empty the balance sheet, you go for sale or takeover of assets. What is the entry for sale or takeover? So it is buy cash, right? Buy cash, cash to realization. Fixed assets realized 5,20,000. मिला. Book debts का मतलब क्या होता है? Debtors realized I think 4,40,000. और क्या दिया? Stocks were valued at 250 and it was taken over by Y. वो taken over है तो I think 9,60,000 इतना ही है assets से. Buy cash का corresponding entry cash में क्या आएगा? To realization 9,60,000. अभी इधर एक assumption. पहला different point क्या है? लिख के रखो last side of your notes. 12th में क्या था? In the absence of any info, assets were ignored and liabilities were paid off, right? क्या अज्यूम करते थे 12th में? एसेट्स का कोई इन्फो नहीं दिया तो इग्नोर, बट लायबिलिटी का कोई इन्फो नहीं दिया तो पेड ऑफ. इधर क्या करने का? एसेट्स का भी इन्फो नहीं दिया है तो भी रियलाइज एट बुक वैल्यू, लायबिलिटीज का भी इन्फो नहीं है तो पेड ऑफ एट बुक वैल्यू.
ओके एंड दिस assumption you will follow throughout. आगे कंपनीज में भी लिक्विडेशन वगैरह करेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड assumption. एसेट्स का इन्फो नहीं तो इग्नोर नहीं करने का, सेल इट आउट एट बुक वैल्यू, एंड लाइबिलिटीज का नहीं है तो पे इट ऑफ एट बुक वैल्यू फॉर सीए का डिसोल्यूशन. ओके तो लिख दो लास्ट साइड ऑफ योर नोटबुक. लास्ट साइड ऑफ योर नोटबुक पहला पॉइंट, इफ नो इन्फो इज गिवन अबाउट एसेट्स then realize at book value, and if no info is given about liabilities then pay off at book value. Sorry, if no information is given about assets then realize at book value, and if no information is given about liabilities then pay off at book value. assets का नहीं है तो sell out, liabilities का नहीं है तो pay off at book value. इग्नोर नहीं करना है यहाँ पे कोई, ठीक है. बोर्ड्स में है थोड़ा हिस्सा भी डालते हैं पहले. ओके नाउ ये हो गया आपका कैश टू रियलाइजेशन. फिर एसेट टेकन ओवर है. व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? बाय वाइज कैपिटल अकाउंट. एसेट टेकन ओवर क्या लेके गया? स्टॉक एट 2,50,000. और कुछ है? I think asset part is done. Corresponding effect to realization. Y लेके गया right? 2,50,000. Asset के बाद pay off the liabilities. What is the entry to pay off liabilities? Realization to cash. बराबर है? Creditors were paid off at a discount of 5%, right? 5% of 3,20,000 माइनस कर दो, कितना है? 3,04,000 है. एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है, दैट इज आई थिंक 6,000, राइट? टोटल वैल्यू इज 3,10,000. अपने को वही करना है, कितने का कितने में, कितने का कितने में. याद आया? We're not going to record any gain or loss anywhere. Same thing. And to cash का corresponding effect हो जाएगा by realization, that is 3,10,000. And I think with that your sum is total loss आ रहा है. फिर कितने का लॉस है? कितना? 80,000. थोड़ा सा केयरफुल रहना, इधर थोड़ा सा एक पार्ट अलग है. क्या अलग है बताता हूँ मैं. कितना है लॉस XYZ कैपिटल? How much is your loss? 80,000. And division? 3,556. Yes? 6,7. Sorry? And 17,777. XYZ 35,556, 2,667 and 1,777. So corresponding entry आएगा to realization 35,556, 26,667 and 1,777. आंसर 14,620. यहाँ पर आके है ना एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी है, नोशनल लॉस रिसीव्ड की एंट्री. ओके, व्हाट इज दिस नोशनल लॉस रिसीव्ड की एंट्री? बोर्ड पे देखना. ये जो लॉस हुआ ना, लॉस, ये कैपिटल के डेबिट में, मतलब बिजनेस क्या बोल रहा है कि मैं आपको इतना पैसा कम देगा. इतना पैसा कम देने का मतलब क्या है कि लॉस कैपिटल को घटा दिया है. प्रॉफिट है तो बढ़ाता है, लॉस है तो घटाता है, कॉमन सेंस. अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा इधर से सेटलमेंट करके कैश में डाल देते हैं 12th में. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी है, नोशनल लॉस रिसीव्ड की एंट्री. ये एक्चुअली कुछ काम की नहीं है, थियोरेटिकल एंट्री है. नोशनल लॉस रिसीव मतलब जितना लॉस हुआ पार्टनर्स उतना पैसा घर से लाएंगे. पार्टनर्स उतना पैसा घर से लाएंगे और फिर वापस सेटलमेंट के बाद बिजनेस उनको दे देगा. हाँ, अभी ये लॉस हुआ है ना, इतना ही पैसा पार्टनर्स घर से लाएगा और वापस बिजनेस उनको उतना पैसा दे देगा. तो 12 में हम लोग नेट कर देते हैं. यहाँ पे थोड़ा टीडीएस है बट है, फॉलो करता है, ऐसे है तो करना पड़ेगा. बाकी कुछ काम का नहीं है ये एंट्री. समझ में आया? क्या है? नोशनल लॉस रिसीव. ये लॉस में ही होगा, प्रॉफिट में नहीं. किस में करने का? लॉस में. फेक एंट्री बोल सकते हो कि अभी ये लॉस है, समझो लॉस होता है
3000 2000 1000 3000 2000 1000 हम लोग घर से लाएगा बैंक टू कैपिटल, फिर वापस सेटलमेंट के वक्त हम लोग उसको पूरा पैसा देने ही वाले हैं, तो उसी से लेने का उसको देने का, बट एक्स्ट्रा एंट्री पास की जाती है तो करने का। तो सेकंड पॉइंट लिखो पीछे लास्ट साइड पे, सेकंड डिफरेंशियल पॉइंट लास्ट साइड पे। पहला पॉइंट आपने लिखा ना एसेट का इन्फो नहीं दिया तो रियलाइज एट बुक वैल्यू, लायबिलिटी का नहीं दिया तो पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। द सेकंड वन राइट डाउन whenever there is loss on realization, receive the loss amount from the partners. Whenever there is loss on realization, receive the loss amount from partners by passing the following entry. Receive the loss amount from partners by passing the following entry. That entry is bank to partners capital. Bank to partners capital. Sorry. Bank to partners capital. Bank to partners capital. मिला? And आगे लिखना स्टार मार्क करके this entry this notional this loss amount will not be brought by insolvent partner. This loss amount will not be brought by insolvent partner. This loss amount will not be brought by insolvent partner. खाली क्या ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर इंस्टॉलमेंट है तो वो ये लॉस अमाउंट लाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास घर पे पैसा ही नहीं है, समझा? तो ऑल पार्टनर का सवाल ही नहीं ना, उसमें तो पूरा ही अलग हो जाता है, उसमें भी नहीं है, वो सब भी इंस्टॉलमेंट है, उधर भी नहीं लाना। तो इंस्टॉलमेंट पार्टनर विल नॉट गेट, सपोज यहाँ पे एक्स वाई जेड में जेड इंस्टॉलमेंट होता तो खाली एक्स और वाई पैसा लाएंगे, जेड को पैसा लाने का या ऑब्वियसली उसके पास घर पे पैसा नहीं। नहीं लाने ही नहीं, एंट्री नहीं करनी, मतलब खाली एक्स और वाई लाएंगे 35556 और 26667, बस जेड का करने का नहीं। अगर वो इंस्टॉलमेंट होता तो यहाँ पे तो सभी सॉल्वेंट है, तो एक फेक एंट्री हम लोग कर लेंगे, बाय कैश, घर से पैसा लाया, कितना लाया 35556 26667 एंड व्हाट 17777, और करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश में आ जाएगा 2x 2y एंड 2z। तो क्या एक्स्ट्रा किया मैंने, क्या कुछ दिमाग में? खाली एक फेक एंट्री पास की है कैश रिसीव करने की, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो खाली नहीं लाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स लेके आएगा और लॉस ही लाएगा, प्रॉफिट केस में पे ऑफ करने का नहीं, खाली लॉस है। तो ये पैसा लेके आओ कैश में 2xyz, एक सेकेंड ना, 35556 26667 एंड 17777 एंड बस नाउ सेटल करो, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो आई थिंक पे ऑफ करने का है, 2 कैश आएगा, कितना आ रहा है 4,40,000 आ रहा है, 3,30,000 आ रहा है, 2,20,000 आ रहा है, करंट 3 लाख और 30 है ना, अच्छा नहीं हाँ ये भी है, तो 3,30,000 1,80,000 आ रहा है, ओनली 80 and this is by x y and z। ये नॉर्मल सेटलमेंट है, पहले खाली पैसा लिया और वही पैसा वापस किया, ये वो एक एक्स्ट्रा एंट्री है। 4,40,000 80 and 2,20,000 40 10,50,000 या टेल मी। वो लेने का समथिंग वाज रिकवर्ड, डेबिट माइनस डेबिट माइनस, तो जो 177 और आज वो तो आएगा ही नहीं, वो आएगा नहीं, नोशनल लॉस का पैसा लाएंगे, तो जो नॉर्मल है वही आएगा उसका डेबिट माइनस, और फिर तो सेम प्रोसेस है, जो लाया वो दिया, फिर सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। लेकिन वो भी तीसरा पॉइंट अलग है, गार्नियर बोल रहे कैपिटल रेशियो में होता है, पीएसआर में नहीं होता, बताऊंगा, पहले एक एक करके लो। फर्स्ट पार्ट समझ में आया, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एसेट, क्या करना है यहाँ पे
इग्नोर मत करना, क्या करना, realize it at book value. Liability, no information, paid off at book value. And one extra entry in case of loss, you got it? Buy cash, receive the amount, खाली इंस्टॉलमेंट पार्टनर लाने वाला नहीं, बाकी लोन आएगा, लाओ और फिर पे ऑफ करो, वही पैसा लाए वही पैसा वापस करो। और पार्टनर में सब इंस्टॉलमेंट तो आएगा ही, लॉस का आएगा, मतलब no one is going to get it. Okay? Come on, try this sum on your own. Sum number 13. 1, 3, 13. Try 13th one on your own. 13 sum try करो. भाई मंटू ग्रैंड है, ये साइलेंट है, बंदा क्या है? अभी बोलेगा फालतू आदमी पे जुड़ता है ऐसा
I am using the ICI technique. Actually ICI का पेपर थोड़ा ऐसे करता है, 2 से मल्टीप्लाई करता है, 2.5 से 1.5 से सेम फिगर सेम सम, एक एडजस्टमेंट काटेगा एक बढ़ाएगा, वही आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल ही आता है, कंसेप्ट आ गया तो वही सम पे सिमिलर आता है। एक नहीं आया है। ये पागल हुआ नहीं
क्या हुआ? ये बोलते हैं मेरे को ऐसा बोलते हैं बहाना नहीं कर रहे हैं बाद में सुन हाँ वही तो दूसरा भाई हाँ क्यों नहीं गया तूने क्यों नहीं गया कितना है सर आंसर बताओ I know that we are topper, but please wait for कृष्ण प्रैक्टिकली कुछ यूज नहीं, ऐसे ही वो पैसा लाया बोलो और वही पैसा फॉर्म उनको वापस दे रहा है। इन रियलिटी वी डोंट डू ऑल्सो, सीधा सीधा जो नेट अमाउंट रहता है वो पे ऑफ या रिसीव है खाली बुक एंट्री है, बिकॉज आईसीआई इज फॉलोइंग चलना कभी स्किप भी हो गया तो नोट टू वरी है, याद आए तो करके रखो चलता है। Sila
कितने में हो रहा है टैली? 16,40,000 ऑल ऑफ यू 16,40,000 राइट? टैली जो 16,40,000 यस हेलो Shawl 10 sums 10 sum on your own come on sum number 10 खुद से करो this is revision entry for Sunday class enjoy चलो 10 sum practicing for Sunday test so simple thing we do class में भी तुम्हारा टेस्ट का प्रैक्टिस हो चलो चलो 10 sum ध्यान से प्रोफॉर्मा अच्छे से करके आना गुड चांसेस ऑफ गेटिंग प्रोफॉर्मा and good chances of getting journal entries in dissolution. Okay. Good chances of getting leisure in bills of exchange also. Read the question properly. Read the question 2 times. Okay. ध्यान से देखना read the question properly चलो try this question 10 15 minutes quick not even 15 10 minutes small come on 8:25 wind it up quick करते जाओ बहुत है हाँ नहीं रखने वाले चलो गाइस क्विक डोंट वेस्ट टाइम फटाफट अच्छा कल कॉलेज में हॉलीडे है क्या बाय एनी चांस तुम्हारा नहीं रख रहा हूँ मैं लेक्चर पक्का हॉलीडे है ना एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं रख रहा हूँ मैं हॉलीडे है ना ऑफिशियली अरे मीठे भाई वीडियो ओके वही बात करते हैं 1 मिनट अभी ये करो भाई एक लेक्चर का लेक्चर मार रहे हो चलो सॉल्व 8:25 तक एक ये करो 8:25 तक
कॉन्सेप्ट में नहीं, कॉन्सेप्ट इतने वो अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी है पे ऑफ कर देंगे। एक मिनट, ये वाला है अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6000 टेकन ओवर फॉर 4800। क्या भाव पे जा रहे हैं? सीधा 4800 किया। अमाउंट ऑफ 4200 ड्यू फॉर जीएसटीएस कम टू नोटिस एंड आल्सो पेड। दिस इज आल्सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सीधा पे ऑफ कर देने का इधर से टू बैंक में, सुना? टू बैंक या टू कैश? टू कैश, टू कैश में एक साथ पे ऑफ कर देने का। दैट्स इट। मिला? रिकॉर्डेड हो कि अनरिकॉर्डेड उससे फर्क नहीं पड़ता। कितने का कितने में? गॉट इट? हेलो, प्रॉफिट हुआ तो वो एंट्री मारने का कुछ प्रॉफिट हुआ तो नो एंट्री फॉर दैट। लॉस है तो एंट्री करना है। हाँ हाँ बराबर। कैश कितना है? इतना चिपक नहीं बैठेगा। चिपकता क्या है? अभी
हाँ जी, अरे वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पे ऑफ टू टैक्स में रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड सब साथ में पे ऑफ, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड दोनों साथ में पे ऑफ कर देना। एसेट 6,4800 तो सीधा 4,800 बाय पार्टनर्स कैपिटल 4,800 समझा? हेलो, लाइबिलिटीज में सीधा जीएसटी पे ऑफ, रिवाइज वैल्यू 4,200 समझ में आया? हेलो, गाड़ी करो ऐसे क्या है? प्रॉफिट आया, लॉस आया, बराबर तो 9,900 9,900 9,900 का प्रॉफिट आया, सबको मिला ना? कैलकुलेट करो, करूँ सॉल्व? नहीं, ये सॉल्व करूँ? सर तो हम लोग को 10 मिनट जल्दी सर 9 बजे छोड़ दो ना अनरिकॉर्डेड एसेट ये इधर आएगा, अनरिकॉर्डेड है ना, ऊपर जीरो है, उसका सीधा 4,800 आएगा। अच्छा, जीरो का 4,800 आएगा। हाँ, प्रॉफिट का कुछ नहीं है, नहीं प्रॉफिट का कोई नोशनल एंट्री नहीं करना है, सुना? समझा क्या? प्रॉफिट या कोई कैश वैश देने का एंट्री नहीं है, खाली लॉस का ही है। यही रिवाइज करवा रहा हूँ। कल ही तो परसों विसर्जन कल है।
तू लग रहा है चलो डन आया प्रॉफिट आया 9900 कृष्णा किधर अटका था चलो चलो टोटल बात का एसेट का अलग आ रहा है मुझे अलग 2,40,000 क्या करूं आई विल लेट कम नहीं सर वो फाइनल में ना क्या सर Amirius needs always Nambal tanda और चार्जर दिए कौन होगा सही बेटर होगा 10th हो गया सबका अभी मिला 9900 प्रॉफिट तो क्या इतना घूम रहा है यार कब से हुआ कि नहीं टैली कितने पे हो रहा है टैली कितने पे हो रहा है टैली 308 400 any doubt in the problem वो unrecorded asset आया सीधा 4800 by partners capital and GST जो पे ऑफ किया वो सीधा 2 बैंक या 2 कैश whatever okay 4200 हाँ रियलाइजेशन में नहीं डालने का उसको वो डालने का ही नहीं है 6000 या ऐसा कुछ 4800 सीधा इधर से करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा समझा इधर दिखेगा ही नहीं अनरिकॉर्डेड सीधा इधर बाय पार्टनर कैपिटल 4800 और रियलाइजेशन में 2 सॉरी कैपिटल में 2 रियलाइजेशन 4800 अनरिकॉर्डेड था ना बुक वैल्यू 0 था 0 का 4800 पे गया ऑल क्लियर सबका होमवर्क है आपका सर गिफ्ट सर कौन को आ रहा है रिटर्न सीट नहीं सब निकला दे 20 seconds of is for homework. Now all of you take 22 is for homework. ग्रुप पे डाल दो 22 homework है आपका. याद नहीं रखा सर वो लिख देना कैंडिडेट होगा 1 घंटे पहले कॉपी नहीं कर
ब्लेम क्या कर रहा है? Twenty to score over, okay? Now all of you take this sum number 3. Third sum ले लो फटाफट. नहीं नहीं. सर इंस्टॉलमेंट वाला नेक्स्ट लेक्चर Sum number 3. Amal and Bimal are in equal partnership. Please be quiet. Amal and Bimal are in equal partnership. Their balance sheet stood as under. Sum number 3, page 253. You have the balance sheet. The assets were realized as under. Expenses of realization are 175. Amal's private estate is not sufficient even enough to pay private debts, whereas Bimal's private estate has a surplus of 200 only. Now both Amal and Bimal, they are not able to get money. That means it is what? All partner insolvency. You got it? Now remember all partner insolvency. What was the format? Dissolution account. Yeah. Amal and Bimal, both of them are insolvent. You got that? Yes. So, quiet. All partner insolvency कैसे करने का? You have realization account. You have liabilities का separate account. Which liability you have over here? Just one. Creditors. Just one extra account. You have partners capital. You have cash. And I think you have deficiencies. Is that clear? There's only one liability. So very simple problem. All partner insolvency. नहीं. Guys, सर मंटू बहुत मस्ती कर रहा है. मंटू निकाल लो आगे मत. नहीं इसको नहीं चाहिए. quiet now. Please, silence. सर लाइबिलिटी अकाउंट ये साइड पे पड़ेगा. पता नहीं क्या. चलो सुनो अभी. So याद करो all partner insolvency. What was the first step? First 3 steps remained the same. Do you remember? What was the first step in all partner insolvency? Empty the balance sheet. बराबर है? So by balance brought down. This was 750 and Bimal का डेबिट में है. ओके इसका बिमल का 550 एसेट साइड है मतलब डेबिट है. क्वाइट नाउ. चुप बैठो जरा बात मत करो. एकदम चुप रहता है. क्वाइट. When you go to your cash balance, that is 200. Go to your creditors. Creditors, we have a separate account. Why we have made a separate account? Because it is all partner insolvency. Okay. Then the remaining assets you transfer to realization to sundry assets
Starting with you have plant and machinery, 2,500. Furniture, 500. You have debtors, 1,000. You have stock, 800. You have cash and Vimal's drawing, that is done. टोटल आ रहा है आई थिंक 1823 4800 आ रहा है मिला क्रेडिटर्स गया उधर empty the balance sheet is done. Go for what is the second step in all partners insolvency? Sell out the assets. That part remains same. So buy cash. Okay, sell out the asset, plant and machinery. It realized 1250. Sorry, furniture, it realized 150, debtors realized 400 and stock realized 500. 9 plus 12, 21, 2200, 2300. Buy cash card to realization 2300. बराबर है? Sell out the asset भी हो गया. First step done, sell out the asset done. What next? You do not pay off all the liabilities because you won't have sufficient money, right? So you pay off only just one thing. What is that? Realization expense. So वो चुका दो. To cash. What's your realization expense? 175. Corresponding entry cash में आ जाएगा by realization 175. Then immediately you calculate your profit or loss and you transfer it. 4975 by partners capital. Equal ratio है या इसमें क्या क्या वर्किंग नोट इसमें क्यों आएंगे? सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी नहीं है, ऑल पार्टनर. सिंगल पार्टनर में बता रहा ना कितना लाया, फिर डेफिशिएंसी, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट. या फिर ऑल पार्टनर में दो सेम नेचर का लायबिलिटी तो लायबिलिटी रेशियो के लिए बने. यहाँ पे तो एक ही है तो प्रॉब्लम नहीं है. क्या आ रहा है ये डिफरेंस? 2675 to 1337 और 1338 बराबर है. करस्पॉन्डिंग एंट्री टू रियलाइजेशन 1337 1338. तो नॉर्मली हम लोग नोशनल लॉस की एंट्री करते हैं ना बाय कैश, इधर नहीं कर सकते. क्यों? दोनों ही इंसॉल्वेंट. यू कांट गेट द मनी फ्रॉम होम, राइट? शुरू में मैंने आपको इसके लिए नोट लिखवा है, इंसॉल्वेंट पार्टनर आने वाला नहीं है. यहाँ पे आने के बाद याद है मोटे बॉस मनी 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 पैसा. पैसा कहाँ से आता है? दो जगह से. एक सेल ऑफ एसेट वो हो गया, दूसरा partners private estate. Check any of the partner is getting anything. Bimal, Amal couldn't bring anything, but Bimal brought 200. तो उसको ले लो, पैसा ले लो वहाँ से. Cash to Bimal's cap 200 और Bimal's cap में buy cash 200. याद आया कुछ? Yes. Okay, and now go to cash and check how much cash you are having. सारा पैसा आने का रास्ता बंद. Sale of asset से भी आ गया एंड पार्टनर से भी आ गया. नाउ चेक कैश का क्या सिचुएशन है. हाउ मच मनी वी आर हैविंग? 2700 माइनस 175 25 राइट. ये पैसा किसको जाना चाहिए? क्रेडिटर. पूरा पैसा उठा के एक ही लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिटर्स को ही पे ऑफ कर दो. कितना? 25 और बस जो बच गया वो सारा किधर चला जाएगा? वेयर डू यू ट्रांसफर बचा हुआ सारा पैसा? डेफिशिएंसी. दिस गोज टू डेफिशिएंसी. याद आया? कितना आ रहा है? 2275. करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय. ये क्या पैसा है जो हम दे नहीं पाए? दे क्यों नहीं पाए? क्योंकि पार्टनर्स ला नहीं पाए. डस्टबिन. तो पैसा चुका नहीं पाए क्योंकि पार्टनर्स पैसा ला नहीं पाए. बाय डेफिशिएंसी हाउ मच?
580 and 1688. 1688. Corresponding effect to Amal cap and to Vimal cap. This is 587 and 1688. Sorted. Tallies on 2275. 2275. Is it tally? Please check. Is it tally? Check the look. Mila. Sorted. याद आया? All partner insolvency. Sell out the asset. Dissolution expense pay off करने के बाद सीधा जानेगा कैश पे, पैसा लेने के लिए. मनी मनी मनी. याद आया? दो रास्ते से आता है. एक सेल ऑफ एसेट वो हो गया, पार्टनर कैपिटल वो ले लिया. इधर क्यों नोशनल लॉस का एंट्री नहीं मारा? पैसा लेने का एंट्री. इंस्टॉलमेंट घर पे पैसा ही नहीं है, क्या लेके आए? ओके, 200 रुपया बेचारे के पास. फाइन भी मान करेगा. चलो 15 सम ध्यान से करो. 15 सम सेकंड लास्ट उसके बाद एक. चलो गाइस, छोटा सा समय 10 मिनट में उड़ाओ, फिर लास्ट सम करेंगे साथ में और फिर जाओ. अच्छा, कल आपका है ना सवेरे खत्म कर देते हैं. 12 बजे खत्म करो, फिर आई थिंक मैसेज आएगा सर का 1 to 2:30 या 1:50 to 2:45 खत्म हो जाएगा. ऐसा चलेगा. राजी से कितने बजे तक? नहीं, वो उनका लेक्चर है बीच में, तो 1 to 2:30 या 1:30 पौने दिन तक आप फ्री हो जाओगे. शाम को नहीं रहेगा. ठीक है? कितना बजे? ये तो 11 बजे रहेगा ना फ्रेंच रहेगा. 11 बजे फ्रेंच रहेगा ना. 10:30 को रहेगा ना फ्रेंच. ये तो 1 बजे है. ये 1 बजे 12:45 1 to रहेगा. वो डालेंगे अभी सर 1 o'clock या 1:30 जो भी है. शाम को ट्रैफिक जल्दी खत्म हो जाएगा. 2:30 तक आप लोग फ्री हो जाएगा. 2:30 वो सर से बात करो. सर नहीं लेते. आराम. चलो गाइस, क्विक उड़ाओ. फिर लास्ट सम साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आप लोग जाओ. नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे रहेगा. ट्यूसडे डिसॉल्यूशन है. ट्यूसडे को मेरा अकाउंट्स का बात करो. ट्यूसडे अपना लेक्चर रहेगा. फिर फ्राइडे से एग्जाम है, तो फ्राइडे टू नेक्स्ट थर्सडे नो लेक्चर सीए का. फिर सीधा नेक्स्ट फ्राइडे रहेगा. मतलब 12, 14, 16 और 18 को है आपका एग्जाम. टाइम टेबल है ना, ग्रुप पे डाला है. 12 तारीख फ्राइडे आ रहा है, 13 सैटरडे, 14 संडे. संडे को लॉ है. हेलो सुना? जिसका जो लेक्चर है तभी आ रहा है एग्जाम. फिर ट्यूसडे को मैथ्स है और थर्सडे को आपका इको है, और फिर सीधा फ्राइडे को आएगा नेक्स्ट क्लास आप. ठीक है? 15 भी देखो, ध्यान से पढ़ो. ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है, ध्यान से करो. नहीं अरे टेस्ट दो. अभी तो देखिए एडमिशन, रिटायरमेंट टेस्ट, फिर कंबाइंड 12 में टेस्ट लिया, फिर वापस इधर पढ़ा. चलिए वीडियो डाला करो. देखो वीडियो वापस करने का दिन अटेंड किया तो आएगा. मेमोरी में वो सुसुप्त अवस्था में उठेगा. चलो गाइस, क्विक चलो आएगा. क्वाइट डाउन. बोलो. अरे ड्राइंग मतलब डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी. टू बैलेंस बीडी लिख देगा.
इधर हाँ बस बैलेंस ही हो ड्राइंग्स किया है ना जो दैट इज डेबिट बैलेंस टू बैलेंस पीडी एसेट वाला सुना लायबिलिटी वाला बाय बैलेंस एसेट वाला टू बैलेंस एक क्रेडिट और एक डेबिट बैलेंस चलो ध्यान से करो चुप बैठो अभी जरा फटाफट खत्म करो उसको ये लास्ट सम पे जाते हैं सर ये लास्ट ये बात बस नहीं प्लीज नहीं ये भाई guys अजय की मछली ग्रुप में
हाँ नहीं बना दिया ना सम नंबर 2 now. अब एक का 2 आ रहा है ना हो रहा है टैली डेफिशिएंसी कितने में हुआ 1725 डेफिशिएंसी टैली लास्ट सम नंबर 2 ड्रॉ खाली वो पैसा लेने का नोशनल वो क्या बता दो नोशनल लॉस वाले हाँ सेकेंड सम में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी नहीं उसमें नोशनल लॉस नहीं हो रहा है 1725 is it tally deficiency 1725 guys any doubts any problem in the problem all clear last sum number 2 star mark करना very important sum very important एक भी सम होमवर्क दिया मैंने 20 सेकेंड इज्जत से करना क्या दो चाहिए एक भी नहीं अरे वो थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे करता हूँ साथ में करना है खाई मत करो अरे अमाउंट ऊपर हो गया अलाइनमेंट बता रहा हूँ मैं 1 मिनट खाई मत करो साथ में करो पहले ये वाला हो गया सबका हेलो 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 हो गया कि नहीं चलिए शुरू करें
All of you done? It has got current account, it has got partners loan also. Huh? Loan from P's loan. So you have realization, you have P's loan, you have current, you have capital and you have cash. याद आया? Good old memories. Resolution. This is now single partner insolvency. If you read the last line, you'll understand. See क्या दिया? P and Q were both fully solvent when were able to bring any cash required, but R was forced into bankruptcy. Was able to bring only 1/3 of the amount due. मिला? So this is single partner insolvency. Hello. Yes. Cash in bank account बनाना है, realization and partners capital after transferring current account balances. चलिए. Let's start. Tell me the first step. Balances, empty the balance sheet. पूरा बैलेंस शीट खाली करना है, जरा अलाइनमेंट ऊपर हो गया, अमाउंट्स का ध्यान देना. पहले तो फिक्स्ड कैपिटल है, तो P, Q and R बाय बैलेंस BD साथ में करते जाना. दिस इज 20, 20 and 10 मिला. 20, 20 and 10 और करंट अकाउंट अलग से है आपका. ओके, करंट अकाउंट बैलेंस आई थिंक P और Q का इज ऑन द लायबिलिटी और R का इट इज ऑन द एसेट. मिला. सो P and Q का आई थिंक इट इज 509,000 एंड R का आपको मिलेगा एसेट में तो 2 बैलेंस BD. R का अमाउंट है आपका ट्रेडमार्क, रियल प्रॉपर्टी, प्लांट, व्हीकल. करंट एसेट्स में Land and equipment is 1200, motor vehicle is 700. Current assets में stock and a stock. 19 सर 39 Trademark, real property, plant and equipment, motor vehicle. Current assets में stock. Yeah, stock is 3,900. Line बना देना arrow करके. Stock is 3,900. Debtors are 2,000 less provision 100, 1,900. Cash at bank is 200. Cash at bank is 200. Miscellaneous losses के अंदर आपको मिलेगा R's current that is 400 and profit and loss account that is 12,000. देखो stock is 3,900 मिला. Stock is 3,900. Debtors are 2,000 minus 100, 1,900. Cash at bank is 200. And miscellaneous losses के अंदर R's current is 400 and P&L account is 12,000. मिला? Property and trademarks are 8 and 40,000. Over here, real property. मिला? Plant and equipment 12,800 और motor vehicle 700. वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है. उसके नीचे से अलाइनमेंट थोड़ा ऊपर गया. ओके, चलिए. सो आर का करंट अकाउंट है आई थिंक 400. बैंक बैलेंस है 200 रुपया और P&L अकाउंट भी है. व्हाट विल यू डू विद P&L? अक्यूमुलेटेड लॉस से डिस्ट्रीब्यूट कर दो. व्हाट इज द रेशियो? 3:1. सो आई थिंक 6,000, 4,000 and 2,000. इज दैट करेक्ट? मिला? हेलो. और लोन फ्रॉम P वो चला जाएगा बाय बैलेंस BD में 8,000 और फिर जाते हैं हम लोग बाकी एसेट्स पे. तो 2 सन्ट्री एसेट्स. एम्प्टी द बैलेंस शीट. सन्ट्री एसेट्स में आपके पास है ट्रेडमार्क और 40,000. यू हैव प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दैट इज 8,000. Then you have plant and equipment. Plant and equipment is 12,800. मिला? Hello. Motor vehicle is 700. Motor vehicles are 700. And stock is 3,900. मिला? हेलो.
Debtors are 2000 and what about RDD? RDD को अलग से दिखा देने का किधर? Liabilities में दिखा देने का. RDD is 100 rupees. मिला? बैंक हो गया, आर करंट P&L हो गया. टोटल एसेट्स का कितना आ रहा है? 48, 60, 1500, 67, 400. प्लीज चेक. लोन फ्रॉम P अलग है. ट्रेड creditors are 12,400. So 12,500 in the outer column. Just check. Entire balance sheet must be empty. देख लो फिगर्स दिख रहे हैं आपको वहां पे. Entire balance sheet is empty. Empty the balance sheet is done. फिगर्स समझ में आ गए? थोड़ा सा अलाइनमेंट ऊपर की तरफ है. एक एक करके ऊपर से चेक करते जाओगे तो दिख जाएगा. Got it? Okay. हो गया? Next. Once you are done with emptying the balance sheet, what do you do? Sell out the assets. What happened? Let's sell out the assets. Please be quiet. Sell out the assets to put on 1st July 2022 the partnership was dissolved. Motor vehicle was taken over by Q at a value of 500 but no cash bars specifically in respect of this transaction. No cash bars मतलब वो normal है taken over. वैसे भी cash लाता नहीं वो take over का. No cash bars, that is normal, nothing new. Sale of other assets realized as follows. Trademark nil तो लिखने की जरूरत नहीं है. Freehold property. Freehold property से आपको कितना मिला है? 7,000 मिला. Plant and equipment. Plant and equipment से कितना आया है आपका? 5,000. Stock realized I think 3,000. And trade debtors realized I think 1,600. मिला. Creditors were paid 11,700 in settlement. Cost of dissolution 1,500. Loan from P was repaid. PMQ both solvent. I was able to get 1/3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एक I think asset missing है नहीं. मोटर बिल्डिंग was taken. ट्रेडमार्क नील है हाँ. और मोटर तो हो गया सब हो गया. 16,000. टोटल 16,600. वरना एसेट का इन्फो नहीं दिया तो मैंने बोला है ना. रियलाइज इट एट बुक वैल्यू. याद रखना. ओके. बाय कैश का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट. कैश की बैंक है. तो बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट टू रियलाइजेशन 16,600. यहाँ तक समझ में आया? सेम चीज मैंने किया है, रिपीट किया है, कुछ अलग नहीं है. एसेट सोल्ड के बाद एसेट टेकन ओवर. क्या कोई एसेट टेक ओवर हो रहा है? कौन लेके गया? पी लेके गया नहीं, क्यू लेके गया. सो बाय क्यू कैपिटल की करंट बाय क्यू करंट मोटर कार लेके गया है. क्यू करंट में कितना आएगा? आई थिंक 500 मिला. करस्पॉन्डिंग एंट्री करंट में टू रियलाइजेशन 500 रुपया अंडर क्यूज करंट. दैट डन. मिला नहीं? ओके. Q current, your motor vehicle taken over. Asset taken over, asset sold done. Let's move to liabilities. Let's pay off the liabilities to bank. Will you pay off RDD? No. Trade creditors क्या? Pay off है कि taken over? Creditors were paid 11,700 in full settlement. मिला? दिखा? 11,700 आपने चुकाया है creditors को. Did you get it? Hello? और RDD तो चुकाना नहीं है आपको. यस. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है कितना है? 1,500 रुपया. और बस कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वगैरह 13,200 मिला.
टू बैंक का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैंक में आ गया बाय रियलाइजेशन 13,200. This is all same. This you all have done in 12th standard. Same thing I am doing. Nothing new. Correct? Sorted. Then loan from P. इसको भी क्या किया है? It was paid. It was given. Last line पे दिया it is repaid. So what entry you pass? Loan from P में to bank 8,000 and corresponding effect bank में by loan from P. अच्छा इधर बुक वैल्यू में ही गया है. What if ज़्यादा या कम प्राइस में जाता? तो realization. The difference would have been transferred to realization, right? Gain or loss. ये भी किया है हमने. That's it. You can find out your profit or loss. How much? Loss है? Profit loss है. 67, 70, 80,600 आ रहा है. 80,600 आ रहा है. 51. Okay, divided 51. किधर जाएगा ये? Current की capital. Current because we are having current. Yeah. Division. 25,500. 70,000 and 8,500 बराबर है. लॉस ऑन रियलाइजेशन बाय पार्टनर करंट का आ जाएगा टू रियलाइजेशन दैट इज 25,500, 17,000 and 8,500 मिला. अब क्योंकि लॉस है तो क्या करना है आपको? एक नोशनल एंट्री फॉर रिसीविंग द मनी, वो एक्स्ट्रा एंट्री करनी है. वो ख्याल रखना है करंट में नहीं होगी, वो एक्स्ट्रा एंट्री कैपिटल में होगी. ओके, एक्स्ट्रा नोशनल लॉस लाने की कैपिटल ही लाते हैं वो लोग. तो किस में करने का? कैपिटल में करने का. ये सेटलमेंट भी कैपिटल से करते हो ना फाइनल. तो लाने की भी एंट्री किधर करने की? कैपिटल. लेकिन will all the three partner get this loss money? Then who will get? Because आर तो गया, उसके पास पैसा ही नहीं. तो खाली ये नोशनल लॉस की एंट्री भूलना मत. बाय बैंक. ओके, नोशनल लॉस रिसीव. नोशनल लॉस रिसीव. ओके, नोशनल लॉस रिसीव. दिस इज 25,500 and 17,500. Just for your understanding, नोशनल लॉस की एंट्री 25,500 and 17,000. Yeah. 25,500, 17,000. Don't take anything from R. बेचारा गया है, घर पे पैसा नहीं उसके पास जरा सा भी. Okay, he's bankrupt. So hope you got this notional loss वाला part. खाली solvent partners लेके आएंगे, ठीक है? Done. बस अभी क्या करते हो आप? ये गया है, R इंस्टॉलमेंट हुआ है, तो कौन शेयर करता है उसकी डेफिशिएंसी? सॉल्वेंट. बट पहले क्या करना है? कहाँ शेयर करनी है? करंट अकाउंट में करनी है, कैपिटल में? पहले सारा का सारा करंट उठा के किधर डाल देने का? कैपिटल. सो दैट यू कम टू नो द नेट अमाउंट, राइट? शट डाउन दिस करंट एंड ट्रांसफर इट टू कैपिटल. आई थिंक तीनों का इस तरफ ही आ रहा है ना? तीनों का इधर ही आ रहा है. बाय पार्टनर्स करंट, सॉरी बाय पार्टनर्स कैपिटल. करंट में लिखना है बाय पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल में लिखना है टू पार्टनर्स करंट. 31,500 minus 500 is 31,000 I think. 21,500 minus 9,000 is 12,500. 2 plus 8, 10 plus 10,900. 10,900. Am I right? Corresponding entry 31,000, 12,500 and 10,900. सारा कुछ मैंने 12th का ही रिपीट किया है. खाली मैंने एक स्टेप किया एक्स्ट्रा किया, नोशनल लॉस. वो कैपिटल में करना भूलना मत. ओके, करंट में मत करना. करंट में कभी घर से पैसा लाता नहीं है कोई. ड्रॉइंग्स रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट रहता है. घर से लाने वाला पैसा हमेशा कैपिटल में ही आता है. इज इट क्लियर? Got it? So current goes to capital, and now you go for that insolvency part. Remember that note we used to prepare for that insolvent partner. याद करो वो क्या नोट था? कौन गया है? R. So amount due from R. Amount due from R. How will you calculate? Debit minus credit, right?
Debit minus credit, which is 10,900 minus 10,000 बराबर है. So how much are we supposed to receive? 900. याद आया? But are we getting full 900 from him? Less R brings how much? 1/3 मतलब 300. जो लाया उसका तो एंट्री करना पड़ेगा, yes or no? जो लाया उसका तो एंट्री कर दो आप. क्या होगा एंट्री इसका? बैंक टू आर्स कैप में बाय बैंक, आर्स कैप में बाय बैंक कितना? 300 और बैंक में आएगा टू आर्स कैप 300 बराबर से. समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक याद आया? डेबिट माइनस क्रेडिट 900 लेना था, 900 में से 1/3 300 लाया, बाकी 600 क्या है उसका? डेफिशिएंसी. इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आर will be shared by P and Q in capital ratio. In capital ratio. In capital ratio. Yes, ये अलग है. इधर लिखने का ब्रैकेट में गार्नियर वर्सेस मुर्रे रूल. गार्नियर वर्सेस मुर्रे रूल. गार्नियर वर्सेस मुर्रे का क्या सीन हो गया था? तो they had this case, I think, बहुत पुराना केस है यूके का कोर्ट का. हाँ, गार्नियर वर्सेस मुर्रे. गार्नियर GARNIER, मुर्रे MURRAY, मुर्रे. गार्नियर वर्सेस मुर्रे. गार्नियर वर्सेस मुर्रे, सॉरी, GARNER, गार्नियर वर्सेस मुर्रे. गार्नियर नहीं, गार्नियर वर्सेस मुर्रे. GARNER MURRAY. अब ये क्या था सीन? सुनो, इंसॉल्वेंसी हो गई थी एक पार्टनर की. इंसॉल्वेंसी लॉस का एंट्री वही है. व्हाट इज द एंट्री फॉर इंसॉल्वेंसी लॉस? सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, इंसॉल्वेंट पार्टनर को 600 रुपया लाना है, वो नहीं ला पा रहा है. तो बिजनेस क्या बोल रहा है? अगर ये ला नहीं पा रहा है तो मैं दोनों को कम पैसा देगा. मेरे पास मनी प्लांट तो है नहीं कि घर से पैसा उठा के बना के दे दूं. तो बिजनेस इज टेलिंग वेरी सिंपल थिंग. इफ R is not getting 600, I'll pay 600 lesser to P and Q. So that loss of 600 has to be borne by P and Q. They are getting less money. तो डिसाइड हुआ कि PSR में करना चाहिए, लेकिन फिर आर्ग्यूमेंट हुआ कि यार PSR में करेगा तो ये बड़ा लॉस है. ये यहाँ पे 600 रुपए है, बट एक्चुअली में इंसॉल्वेंसी लॉस काफी बड़ा अमाउंट का होता है. तो पार्टनर्स ने डिसाइड, अभी कोर्ट ने भी रूल किया कि हाँ बराबर है, बड़ा अमाउंट है, इसलिए PSR में नहीं होना चाहिए. किसमें होना चाहिए? कैपिटल रेशियो में होना चाहिए. किसमें होना चाहिए? कैपिटल रेशियो. So as per Garnier versus Murray, you have to take insolvency loss not in PSR but in capital ratio. So sir, हम लोग 12th में क्यों PSR करते हैं? Because सुनो ध्यान से, 99% में आपका कैपिटल रेशियो और PSR remains the same. Number 1. Number 2, आप पार्टनरशिप डीड में चेंज करके लिख सकते हो क्लॉज में कि whenever there is some insolvency we will share it in PSR. So in 12th we assume that there is a clause in the partnership deed where we are taking it in PSR. That's why we take it in PSR. Is it clear? But otherwise if nothing is specified, you have to follow Garnier-Murray. Garnier-Murray मतलब don't take it in PSR, take it in fixed capital ratio. So turn your page, last side, write that third note. Third note लिखो. Third note लिखो. In the absence of any information, deficiency of insolvent partner will be shared. Deficiency of insolvent partner will be shared by solvent partners in fixed capital ratio. Deficiency of insolvent partners will be shared by solvent partners in capital
ratio, fixed capital ratio. In fixed capital ratio, you got it? Efficiency of insolvent partners will be shared by solvent partners in fixed capital ratio. ब्रैकेट में लिखना गार्नर वर्सेस मोरे रूट. ओके, सीए में वो लोग बोलेगा नहीं बोलेगा यही करना है, कैपिटल रेशियो. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो करेंगे तभी बताऊंगा. रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्री डिसॉल्यूशन एडजस्ट करने के बाद जो रेशियो है बताऊं. एक एक करके खाओ थोड़ा सा. डिसॉल्यूशन का कितना सम है? अराउंड 12-13 सम. ये आईसीए में कितना आता है? हाँ, ये करस्पॉन्डिंग एंट्री रहेगा. एक मिनट. गार्नर मोरे समझा? ऑल ऑफ यू क्लियर? कैपिटल रेशियो. सो कैपिटल रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो ये है कैपिटल रेशियो. 20-20 मतलब इक्वल. सो 1:1. सो P and Q 1:1 मतलब कितना हुआ? 300. It won't be 3:2. All of you got that? 1:1 कैपिटल रेशियो, ये याद रखना. अच्छा, ये करस्पॉन्डिंग एंट्री रह गया है बाय बैंक का 2P कैप 25,500. ये पहले कर लेना. एंड Q कैप दिस इज 170,000 notional loss one. Amish, what is the entry for this solvent to insolvent? So I think PQ to R आएगा. हेलो, PQ में to R कैप कितना? 300. समझ आया? रेशियो समझा? हेलो, 1:1 not 3:2. And corresponding entry by P cap and by Q cap. This is 300 and 300. So R का account will self tally I think. What about PQ? 2 bank by bank क्या आ रहा है? 2 bank आ रहा है. कितना है? 14,200 and 24,200 मिला. हेलो, is this clear? Corresponding entry by P cap 14,200 and by Q cap 24,200. Tallies 59,600. Tallies on 59,600. 59,600. It tallies 59,600. So main thing over here was what? In the absence of any info, solvent to insolvent कौन सा रेशियो लेगा? कैपिटल रेशियो. 12th में कौन सा लेगा? PSR. क्या assumption है? डीड में दिया हुआ है. They have changed it. Is it clear? चलो, एक ही सम होमवर्क है. We are meeting on Tuesday. कल